Hey guys, welcome to the class. This is me, Abhishek Yadav, and this is YouTube channel Master Means. As I promised, I'll be covering GS1, GS2, GS3, and GS4 over the period of time. That is why it's called Master Means, right? And this is GS3 lecture 7. इससे पहले के सारे lectures upload कर दिए. Go like, side, see and subscribe, please. Okay, so this is the golden rule that I made, and मैं हर lecture से पहले I emphasize it कि why it's so important because syllabus gives you idea where you need to go and what are the UPSC looking into aspirants, right? And the previous year question paper tell you कि what part of the question they are most asking a particular topic and in what the depth you need to prepare it further, and writing practice will help you to write those things that you don't need to think over and which actually saves your time, like definitions जो हो गई, राइट? जैसे इरिगेशन की डेफिनेशन हो गई, आज हम इरिगेशन करेंगे, जैसे इरिगेशन की डेफिनेशन हो गई. इफ एनीथिंग एनी टॉपिक कम्स ऑन इरिगेशन, एनी क्वेश्चन कम्स ऑन इरिगेशन, तो एटलीस्ट डेफिनेशन तैयार है. दैट एक्चुअली सेव्स योर टाइम, एंड writing practice help you to sync between your hand and mind as well. So I don't think I need to extra emphasize why writing practice is important. And current affair also helps you to gives you data, at the same time help you to be more precise and updated, right? So current affair is also important, and in particularly in the context of GS3, it becomes even more important because 60 to 70% questions are coming from current current affair only. Okay, so that is why it's important that you go through all the golden rules that I have written over here. Okay. Okay, so this is the thing, and the purpose of showing this syllabus here is to give you the idea that ऊपर के सारे topics cover हो गए हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, and this is lecture 7. ठीक है, and over the period of time we'll cover all the economic portion. ये सारा economics का ही syllabus है, which includes your agriculture as well. ठीक है. Okay, and so let's start the today's topic, which is irrigation. To understand the irrigation, you need to understand the irrigation is actually the artificial supply of water to the crops. ये आपकी मेन डेफिनेशन है, आपको इतना पता होना चाहिए. एंड इरिगेशन तभी वो कहलाएगा जब इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओनली. ठीक है. अगर इफ यू हैव स्टोर्ड वाटर इनटू द टैंक, बट आप उसको इरिगेशन के लिए, बल्कि पीने के लिए या जानवरों के लिए किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ for the crops, so that won't be called as the irrigation. It's an artificial supply of water for the purpose of agriculture production is called irrigation. ठीक है. And there are the various means by which we can supply water to the crop, and such as canal, tube, tanks, and tube wells, right? And there are different sources as well, which there is river, ponds, and ground, which and आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह जो हो गया, whatever it is, like कि artificial supplying of water to the crop is irrigation, and sources and means वो कोई से भी हो सकते हैं. We'll study further. तो यहाँ पे आपको चार वर्ड याद रखने हैं. एक तो artificial supply of water for the purpose of irrigation, and what are the different means and what are the sources. So basically that summarizes what is the irrigation. ठीक है. Okay, so let's understand what is the irrigation of what is the importance of irrigation. As we know, ki over the 30 to 40 years, the world food production needs to be double, right? So because of growing population, and we have already passed and become the world's most populated country, right? And that is where the food security comes even more important, because आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 1960s में आफ्टर इंडिपेंडेंस 40 years, आफ्टर 20 years it was a shortage and food crisis, जब इंडिया यूएसए से फूड ग्रेन इंपोर्ट करता था, एंड at a point they denied to give any further assistance to the India. And in so you can even understand कि why food security is important anyway. ठीक है. And most of the crop need irrigation because less than 30 centimeters of water is called dry season, right? And for that purpose you need irrigation. And constant irrigation maintains the moisture as well, अगर आप वो करते रहते हैं with the time.
बिकॉज हमेशा बारिश पे तो रिलाय नहीं कर सकते कि वो हमेशा आती रहे. सो वी नीड टू इरिगेट इट कॉन्स्टेंटली टू मैनेज द मॉइस्चर in the crop and atmosphere, right? Okay. So, but there are particular crops like sugarcane, rice, and which need extra water, and that ultimately need even more irrigation, right? And जो new high yield variety seeds है, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जैसे already we have GM cotton, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, अभी ऑफिशियली अलाउड है कल्टीवेट करने के लिए, बट बात चल रही है कि मस्टर्ड को भी अलाउ कर देना चाहिए, बट दैट्स अ हेल्थ कंसर्न इन्वॉल्व. सो ये काफी सालों से ये चल रहा है कि इसको अलाउ करना है नहीं करना है. बट मैं मेरा पॉइंट ये है कि जो न्यू हाई यील्ड सीड्स आ रही हैं, जो कि आपको ज्यादा क्रॉप्स देती हैं, ज्यादा आउटपुट देती हैं, उनमें वाटर 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 इरिगेशन के लिए ज्यादा uh, चाहिए पानी, राइट? एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. एज यू नो कि 50 to 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, and agriculture actually contribute 18% to the GDP. ठीक है, but it is involved the 55% of population, more than half of our population actually involved in agricultural activities. So अगर agriculture को कुछ होता है तो it's like crisis to the population, right? Okay, so these are the importance for the irrigation. And यहाँ पे we'll study even some facts that मैंने कहीं से चुराए हैं किसी वेबसाइट से. एंड ये बताता है कि इरिगेशन में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है. ठीक है, इरिगेशन इन इंडिया जैसे 65% एक्टिव, 45% ऑफ टोटल इरिगेशन. लाइक अगर 100 एकड़ में अगर मान लो जैसे यहाँ पे 141 मिलियन हेक्टेयर में हम कृषि करते हैं, उस कृषि के अंदर जो सिर्फ 45% है, सिर्फ उनको ही इरिगेट किया जाता है. बाकी के 55% एक्चुअली अभी भी रेन पे ही डिपेंडेंट है, राइट? एंड क्रॉप वाइज देखा जाए तो पता चलता है कि शुगर केन सबसे ज्यादा लेता है, वीट लेता है, प्रोस्पेक्ट से. ये डेटा हैंडी इसलिए भी होना चाहिए बिकॉज क्या होता है कि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो ये डेटा आपको एक्चुअली में हेल्प करते हैं टू मेक योर आंसर मोर रिलायबल एंड मोर डेटा ओरिएंटेड, राइट? एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द डेटा. ओके. एंड स्टेट वाइज देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, that too in western UP and Bihar, Bengal and Tamil Nadu, ये एक्चुअली देखो 98% पंजाब में जितनी भी क्रॉप होती है उसमें 98% एक्चुअली इरिगेशन होता है, जो कि ट्यूबवेल से ही होता है मोस्टली. ठीक है, तो 91%, 97% इज यूपी. और इन्हीं ये वही स्टेट्स है जहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जितना ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, ग्राउंड वाटर यूज बहुत ज्यादा है, जितना रिचार्ज नहीं हो पा रहा है. रिचार्ज कैसे होता है? जैसे ग्राउंड में जब बारिश होती है तो ग्राउंड से पर्कुलेशन होके पानी नीचे नीचे धीरे धीरे इकट्ठा होता है, एंड नीचे फिर आपको काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट अभी क्या हो रहा है, जितना पानी आ नहीं रहा उससे कई ज्यादा पानी एक्चुअली में बाहर इरिगेशन और बाकी पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है. तो जो रिजर्वायर है, जो अंडर वाटर रिजर्वायर, अंडरग्राउंड रिजर्वायर है, एक्चुअली वो एंडेंजर्ड है. ठीक है. सो and the area cover in micro irrigation we will study is actually precisely वाटर को क्रॉप तक पहुंचाने की एक टेक्निक को माइक्रो इरिगेशन कहते हैं. एंड उसमें है कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो 6.1 मिलियन हेक्टेयर है, एंड 6.79 मिलियन हेक्टेयर स्प्रिंकलर इरिगेशन है. तो दिस आर सम फैक्ट्स दैट यू कैन कीप इट, और मे बी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट and to keep it to read it so that you can remember over the time. Okay. ओके. सो एक्चुअली पूरे इरिगेशन टॉपिक को हमने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेस्ड ऑफ सोर्सेज एंड ऑन द बेस्ड ऑफ डिलीवरी सिस्टम. ठीक है, ऑफ द एंड यूज, मतलब पानी को आखिरी में यूज करते हैं, तो जैसे आई टोल्ड यू कि स्प्रिंकलर, ड्रिप, सरफेस, ये सारे टेक्निक्स है जो कि यूज होने में यूज होता है, मतलब आखिरी में यूज होने के बेस्ड पे इनको डिस्टिंग्विश किया गया है. एंड ऑल द सोर्सेज के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड इट ऑन द थ्री बेस. एंड आज के लेक्चर में विल स्टडी these three: टैंक, वेल, ट्यूब एंड कैनल इरिगेशन. एंड इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ इन कमेंट दैट कौन सा इरिगेशन सिस्टम है जो सबसे ज्यादा यूज्ड होता है? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स. ओके. सो आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज इन द सोर्स इरिगेशन में, मतलब सोर्स में, बेस्ड ऑन सोर्सेज पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो टैंक इरिगेशन है. एंड टैंक इरिगेशन का रेशियो देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज रिड्यूस्ड टू 14% टू 4.6% इन 2001. ऐसा क्यों हो रहा है?
we'll study in the merits and demerits, but for the timing let's study कि होता क्या है और वो कहाँ पे एक्चुअली ज्यादा प्रिवलेंट है ये एक्सरसाइज. ठीक है. तो टैंक इरिगेशन इज अंडर ग्रेजुएट एंड रिलीफ एंड रॉक मेक इट डिफिकल्ट टू बिग कैनल सॉरी कैनल एंड वेल. ठीक है. जो जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू में एरिया है वहां पे क्यों पॉपुलर नहीं क्यों पॉपुलर है इस टैंक इरिगेशन इज एक्चुअली पॉपुलर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब वो क्यों पॉपुलर है विल स्टडी इट. क्योंकि हार्ड हार्ड को जो जो आपका प्लेट्यू है जैसे आपका जो मैप बनाते हैं जैसे यहाँ पे मैप बना हुआ है ये आपका इंडिया का मैप है. आपको इसमें देखेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है एक्चुअली में ये प्लेट्यू काफी हार्ड रॉक से बना हुआ है. ठीक है. हार्ड रॉक से बना हुआ है तो यहाँ पे पर्कुलेशन ऑफ वाटर एक्चुअली बहुत कम होता है और नेचुरल फॉर्मेशन है जिसकी वजह से बनता है. विल स्टडी के कौन कौन से पॉइंट्स है. ठीक है. तो percolation of water due to hard rock structure ground is not available at the large quantity, so that makes a perfect condition for the storage of water. ठीक है. Most of the rivers are regional and dry in summer season. अब क्या होता है कि most of the rivers जो हैं क्योंकि वो actually पतले होते हैं rivers just इतने पतले होते हैं तो पानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सूख जाता है. तो ये टैंक इरिगेशन एक्चुअली हेल्प करता है फॉर द रिटेनिंग द वाटर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो या मोस्ट ऑफ द तो ये पॉइंट हो गया. एंड व्हाट इज द टोरेंटियल रेन ड्यूरिंग द. अब क्या होता है जिस जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है बारिश की वजह से तो यहाँ पे डाइवर्ट करके पानी को स्टोर किया जा सकता है. And studied in nature and agriculture field also favorable for the tank irrigation. For the other than agriculture, population और nature के लिए भी इस तरह के टैंक काफी हेल्प करते हैं क्योंकि जैसे बर्ड्स को पानी मिल जाता है सारे जानवरों को पानी मिल जाता है इंसान को पीने के लिए पानी मिल जाता है और अदर फॉर लॉट मोर पर्पस. ठीक है. तो टैंक इरिगेशन एक्चुअली हेल्प्स इन नेचर एंड एनवायरनमेंट एज वेल. Okay, so these are the merit of the tank irrigation. Most of the tanks are natural formed and do not involve the heavy cost. ठीक है. And generally constructed on the rocky bed and have the longer period of lifespan. And many tax fishings are also carried. Fishings भी carried होती हैं जो supplement करती है food resources and income of the farmer. ठीक है. And demerit में क्या होता है कि many tanks dry up during the dry season and fail to provide the irrigation and silting क्या होता है. silting ये होता है कि जैसे ये आपका pond बन गया. ठीक है. अब इस पॉन्ड के अंदर अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी सॉरी हाँ सो हाँ सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लग जाती है सिल्ट जमा होने लग जाता है फिर उसके बाद ये पानी काफी शैलो हो जाता है. वो शैलो अब बहुत मोस्टली वो ड्राई अप हो जाता है या कुछ भी तो इनकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग चाहिए होती है ताकि सेल्टिंग में इकट्ठा ना हो सके. एंड क्योंकि सैलो होता है और ये काफी कम एरिया में होता है तो ये इवोपरेट भी जल्दी हो जाता है. एंड लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक कैरिंग ऑफ द फील्ड इज एक्चुअली काफी कॉस्टली एक्सपीरियंस. अब पानी यहाँ से फार्मलैंड तक पहुंचाना एक्चुअली is a hell of a hectic problem another level. ठीक है. So these are the demerits and demerits of tank irrigation. I hope you understand. Just get to the slides and study and so that you can remember it well. Okay, so let's get to the move. Let's move to the next point, which is a well and tube wells. Well में फिलहाल first we'll talk about the well. वो well आपको पता ही होगा कुआं क्या होता है. कुआं एक hole dug in the ground जो कि 15 मीटर या more than 15 मीटर होता है. Ordinarily वो 3.5 मीटर होता है और अगर वो किसी रिवर के आसपास है तो इवन कम होता है. ठीक है. And areas under the irrigation will understand कि it is more popular in those regions where the water is a plenty, where are in few कैनल्स. ठीक है. अब वो वही जो मैं आपको बता रहा था कि अगर रिवर्स या ऐसी चीज के पास है तो वहां पे पर्कुलेशन ऑफ वाटर ज्यादा होता है तो वहाँ वेल जब व्हेन यू डिग अ वेल इट्स एक्चुअली पानी आपको बहुत ही ऊपर पे मिल जाता है. एंड वो एरिया इन्वॉल्व इन द नॉर्थ प्लेन एंड महानदी रिवर गोदावरी रिवर कृष्णा कावेरी एंड पार्ट ऑफ द नर्मदा एंड तापी. ठीक है. सो दिस आर द रीजन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे क्यों मिलते हैं. ठीक है. Okay, so peninsular India is not suitable for the well irrigation. I'll tell you because of the rocky structure. मैंने previous slide में after view कि काफी rocky structure है उस peninsular India का और वहाँ पे dig करना काफी एक problematic cause है. इसलिए natural formation और tank irrigation वहाँ पे ज्यादा popular है. ठीक है. Uneven surface and lack of groundwater. And large dry tracts of Rajasthan adjoining Punjab, Haryana, Rajasthan, and parts of Uttar Pradesh have the brackish water and not fit for the irrigation and human consumption.
दैट इज वाई वहां पे भी वेल एंड ट्यूब्स एरिया थे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द ट्यूब वेल। ये अपना सेकंड पॉइंट का ही सेकंड पॉइंट है। ठीक है, विच इज बी। ठीक है, ओके। सो जनरली 15 ओवर एंड मोवर द डीप एंड लिफ्टेड द वाटर फ्रॉम द। ये आपने पिक्चर अक्सर देखी होगी एग्रीकल्चर में, कि इस तरह से एग्रीकल्चर बनाया जाता है। अब ये कई सोर्सेज से चलता है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपका सोलर भी हो सकता है, डीजल और मोटर, इलेक्ट्रिक, कुछ भी हो सकता है। एंड इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर, रिक्वायर सम ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द इंसुलेशन। और वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या होंगी? लेट मी टेल यू। And it provides a sufficient quantity of groundwater because it can generally irrigate 2 hectare per a day. ठीक है, and water level is nearly 15 meter, if not able more than 50 meter of deep, and well irrigation, and there should be a regular supply of cheap electricity। नहीं तो क्या होता है, जितनी की इकोनॉमिकल कॉस्ट उतनी नहीं होती है कि जितना पानी तुम इलेक्ट्रिसिटी में लगा के निकालो, तो एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ जाती है। सो इट शुड बी चीप एंड रेडली अवेलेबल एज वेल। ओके, and soil to the immediate neighborhood of the tube well should be fertile and demand the irrigation and cost of involved of the construction and operation। ओके, ताकि वो अगर वो नहीं है, अगर ये पानी है इसके पास ही फील्ड है, वो इसलिए होता है ताकि इसकी जो इरिगेशन की कॉस्ट है वो कम से हो सके। अगर कैनल्स बनाएंगे दूर तक पानी जाएगा, तो उसमें इकोनॉमिकल कॉस्ट नहीं होती है। सो दैट इज वाई इट्स अ ट्यूबवेल। ठीक है, दिस इज द मेजर एरियाज अंडर ट्यूबवेल। ये सारे स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य। ये वही सारी रीजन है जहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था कि वाटर रिसोर्सेज काफी अच्छे से इस्तेमाल होता है। 98%, जैसे 98% पंजाब में है, तो दे आर यूजिंग द ट्यूबवेल ओनली। एंड क्योंकि वो इजी होते हैं, इजी टू इंस्टॉल एंड इजी टू गेट अ वाटर। ठीक है, ओके। एंड मोस्टली आफ्टर द कैनल इट इज द सेकंड वन। After the canal, it's the second most used way or means to irrigate crops, right? And what are the merits of the tube well? Well, it's a simple and cheapest sources, ठीक है, and it is independent source of irrigation and use the less necessity and ज्यादा टेक्निकल इश्यूज भी नहीं है फार्मर के लिए, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, मोटर होती है, पानी को ऊपर से खींचती है एंड सप्लाई करती है। सो इजी। ठीक है, कैनल इरिगेशन में एक्चुअली क्या होता है कि वो एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, और ज्यादा लोग होते हैं। यू नीड टू टेक परमिशन, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही पानी आएगा एंड ऑल एंड ऑल, देयर सो मेनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसलिए अगर ये आपका पर्सनल होता है तो आप जब मर्जी यूज कर पाते हैं और आपके आसपास के खेतों को इजिली सिंचाई कर पाते हैं। एक्सेसिव इरिगेशन कैन लीड्स टू बाय कैन लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रे। रे मतलब होता है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, और वहां पे सेल्टिंग काफी इकट्ठा हो जाती है, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है विच इज कॉल्ड रे। एंड लिमिटेड एक्सटेंड ऑफ द कैनल इरिगेशन बियॉन्ड द टेल बाय द कैनल एज वेल। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि किसी के खेत से किसी के आसपास पानी जा रहा है, जैसे यहाँ पे कैनल है, ठीक है, कैनल में यहाँ पानी जा रहा है, इसके पास वाला खेत है, बट इसके पास वाले खेत को भी सिंचाई करनी होती है, तो ये परमिशन, ये जगह नहीं देते कि बिकॉज ऑफ नेबर ऑलवेज फाइट। सो देयर इज अ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन कैनल इरिगेशन एज वेल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्राई भी रहते हैं। सो विल यू विल अंडरस्टैंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि क्या क्या पढ़ना है आपको, बट इरिगेशन में आपको यही पढ़ना है कि सोर्सेज क्या है एंड कौन कौन से सोर्सेज, कौन कौन से वेज है, सो दैट वी कैन प्रिसाइजली irrigate the water or irrigate the crops, right? Irrigation system में we will study these things, and apart from that we also study कि किस तरह के previous year questions पूछे गए हैं, which is scheme based। So irrigation related जो भी question आएगा वो इस तरह के ही आएगा। Just go to the previous year question paper, you will understand कि what type of question they are asking and what we need to study, and उसमें से most of the part I'll try to cover। Okay, so several chemicals such as nitrate, chloride, etc. can be found in mixed in a well। अब जो जमीन के अंदर जो अ, गड्ढा होता है, उसके अंदर आपको पता है जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और पानी सब मिलके बाहर आते हैं, जो कि सोइल की फर्टिलिटी एज और ह्यूमन हेल्थ कंजम्पशन के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करते हैं। सो इट नीड्स टू बी टेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। फार्मर हैज टू पे रेगुलरली टू द कैनल एंड बट वेल इरिगेशन में ऐसा नहीं होता। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आप पानी निकालो, इट्स गुड। ओके, सो डीमेरिट ऑफ ट्यूबवेल ओनली लिमिटेड इन सम एरिया। एज आई टू अभी मैंने बताया कि ऊपर कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे ज्यादा होता है, एंड इट कैन इरिगेट अप टू 1 to 8 हेक्टेयर, जबकि कैनल इरिगेशन होता है उसमें रिवर से लेके
काफी ज्यादा गांव, बहुत सारे विलेजेस कवर होते हैं, तो वो बहुत दूर तक एक्चुअली कवर कर सकता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग पीरियड में काफी पहले तो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी इजिली हो जाता है। एंड हर जगह हर तरह के होने चाहिए, दैट्स आल्सो हेल्पफुल। बिकॉज अगर एक ही जगह के, इफ यू वांट कि सबको ट्यूबवेल दे दो और सबको पानी निकालने दो जमीन में, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको अवेल नहीं आपको अलाउ नहीं करती। तो इसलिए ही हर तरह के देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स जहाँ पे आप इरिगेट करते हो क्रॉप्स को, और हर टेक्निक्स को परफेक्ट करना इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसलिए आपको सारे टेक्निक्स को वो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। सो एंड देयर आर द फ्यू टेक्निक्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट, सो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। Okay, well, may dry up can render less use of the irrigation if excess water taken out. As I've told you कि जो states हैं, northern states हैं जहाँ पे पानी irrigation ज्यादा हो रहा है due to use of the tube well, वहाँ पे पानी मतलब वाटर लेवल काफी तेजी से ड्रॉप कर रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग फास्टली। एंड इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एंड दैट टू दे आर excess irrigation cause the loss of the soil fertility as well, and even of drought, underground water fail and creates the enough available when it's needed। जब आप ज्यादा पानी यूज कर लेते हो, तो जब पानी नहीं होता है तो अब आपको प्रॉब्लम होती है। एंड एंड वेल ट्यूबवेल आर irrigated नॉट पॉसिबल इन द एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर, जहाँ पे ब्रैकिश वाटर, वहाँ पे ट्यूबवेल की इरिगेशन वेल आपके लिए इतना यूजफुल नहीं रहती, उसके लिए कैनल ज्यादा यूज होता है। ठीक है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, सोलर एंड ऑल द इक्विपमेंट्स दैट आर नीड टू पावर द ट्यूबवेल इज ऑल्सो कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट। एंड उसके लिए भी गवर्नमेंट काफी स्कीम्स निकाल के आती है, बट इज इट रीचिंग टू द पीपल और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। ठीक है। Okay, so let's study our third and final topic, which is the canal irrigation. Canal irrigation is the most used. So आपके comment का आंसर यही मिल गया है कि canal irrigation अभी भी most used है up to the 16, but 2000 with they tube well become the most used sources of irrigation. Now the canal constitute the second most important source of the irrigation. I think I have answered it कि tube well हो गया, वो आपका मोस्ट यूज है, एंड कैनल इरिगेशन आपका सेकंड मोस्ट यूज है। ठीक है। कैनल आर मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ इरिगेशन। लो रिलीफ, डीप फर्टाइल सोइल्स, पेरिनियल सोर्सेज, वाटर एक्सटेंसिव आर सम की इफेक्टिव सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, राइट? And therefore, concentration of canal irrigation is the northern plain in India, especially in Uttar Pradesh, Haryana, and Punjab. यहाँ पे कैनल इरिगेशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स। ठीक है। अब रिवर्स ज्यादा है तो कैनल भी इजीली बनाए जा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और पानी ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। डिगिंग इज द कैनल ऑफ द रॉकी एंड अनइवन एज अ डिफिकल्ट एंड अनइकोनॉमिकल एज वेल इज द प्लेटिव में, इसलिए आपको ज्यादा यूज नहीं दिखता, क्योंकि इट्स अनइकोनॉमिकल एज वेल, काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है। प्रैक्टिकली एब्सेंट इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। सो नाउ यू हैव टू मेक योर माइंड कि कैनल इरिगेशन कहाँ का होता है, वो क्यों होता है। However, the coastal and delta region South India have some canal irrigation for the irrigation. ठीक है। ओके। अब कैनल इरिगेशन आर द टू टाइप। एक तो इनंडेशन होता है, जिसमें आपको रेनी सीजन के अंदर कांस्टेंट सप्लाई नहीं होता है, एक्सेस बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर। एक पेरिनियल कैनल होता है जिसके अंदर आपको, जो पेरिनियल रिवर होती है, वो आपको 12 के 12 महीने आपको कैनल एंड वाटर प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है। एरिया ऑफ द इरिगेशन इज प्रेवलेंट, कौन कौन सी जगह में है? एक तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार, राजस्थान, सॉरी, पंजाब, राजस्थान, बिहार में भी है ऑब्वियसली 60% ऑफ कैनल इरिगेटेड कंट्री। एंड साउथ इंडिया में है आपको आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एंड दीज आर सम एरियाज दैट are involved. So, what are the merits and demerits of canal irrigation? Most of the canals are provided in perennial region. आपको बताया नॉर्थ में ही कैनल इरिगेशन एक्चुअली ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जो अपने कांस्टेंट 12 महीने पानी मिल जाता है। ठीक है। कैनल्स कैरी द सेडिमेंट एंड डाउन टू द रिवर एंड डिकम्पोज इन एग्रीकल्चर, फिर एड टू फर्टिलिटी टू द सोइल। अब क्या होता है, आपको पता है कि जब पहाड़ों से आप ओवर, जब एक किसी हाई रिलीफ से लो रिलीफ में पानी आता है, तो अपने साथ वो सेडिमेंट भी इकट्ठा करता है इन रिवर्स, एंड रिवर्स बेड में फ्लड प्लेन में जितना भी है वहां पे इरिगेशन फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट्स।
and some canals are part of multi-purpose project and therefore provide the cheap source of irrigation. अब क्या होता है कि यहाँ पे आप डैम वगैरह बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी, और आपको यहाँ से बस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको बस पानी दूसरी जगह बेंड करना होता है, फिर आपके इरिगेशन एरिया को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकता है, यही बता रहा है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट डैम बनाना, कैनल इरिगेशन करना, उसकी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कॉस्टली हो सकता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफी चीप सोर्स हो जाता है। ठीक है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ कैनल इरिगेशन? व्हाट कैनल सोक्स द वाटर इन द ग्राउंड वाटर एंड लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब ये समझ ही गया हो कि एक्सिस फ्लो ऑफ द वाटर इन द फील्ड रेसिस टू द ग्राउंड वाटर लेवल। अब बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही इंक्रीज होता है, उससे कैपिलरी एक्शन ब्रिंग्स होता है, जिससे होता है अल्कलाइन सॉइल। अब क्या होता है कि अगर एक लैंड है, अब इसके पास यहाँ से रिवर जा रही है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि नीचे का जो सॉल्ट कंटेंट होता है, ठीक है, वो काफी ऊपर तक हो जाता है, तो वो वाइट वाइट सा दिखता है आपको क्रॉप के ऊपर, या आपके लैंड लैंड सरफेस पे एक वाइट वाइट परत दिखती है, दैट्स कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। एंड ये जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में सफर कर होता है बिकॉज ऑफ कैनल इरिगेशन। एंड मार्शी एरिया नियर टू द कैनल एंड ब्रिंग टू द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो प्रॉब्लम भी काफी होती है ऐसी जगह पे। एंड रेनी सीजन में कैनल इरिगेशन ओवरफ्लो करता है और फिर जो आसपास के एरिया को फ्लडेड बना देता है। कैनल इरिगेशन इज सुटेबल फॉर द प्लेन एरियाज ओनली। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करे होंगे, जस्ट स्टॉप योर वीडियो एंड स्टडी योर पॉइंट्स, एंड यू कैन मेक योर नोट्स एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, दैट विल हेल्प। And please share the subscribe and channel, that will help me as well and motivate me to upload even more videos, right? Thank you.